All right. So what we were learning in last class? We were learning about cell cycle, right? In that what we have learned? Interphase having G1, S and G2 phase. We also had learned about the function of G1, S and G2. And then we had learned M phase. M phase, which is the actual division phase. M phase, which is the actual division phase. So we were learning which division phase? We were learning mitosis or meiosis? Tell me. We were learning what? Mitosis, right? In mitosis, karyokinesis and cytokinesis, these two things were there, right? Karyokinesis, nucleus division, and cytokinesis, cytoplasm division. We were learning about karyokinesis. We were learning about karyokinesis. In karyokinesis, what all things we had learned? How many phases are there? Think. How many phases are there? There are 4 phases in karyokinesis. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, PMAT. We have already learnt about prophase and to some extent metaphase. Right? So today we will talk about metaphase properly. Okay? So let us begin. I hope you remember what had happened in prophase. You remember it, right? What had happened in prophase? Tell me. We are talking about prophase. What had happened in prophase? The chromosome starts to, or chromatin fibers start to get condensed. Right? You will get condensed chromosomes. Nuclear membrane will start to disintegrate. Centriole will start to go to the pole. What will happen to Golgi apparatus? Golgi apparatus will disintegrate. Nucleolus will disintegrate. Right? Endoplasmic reticulum will disintegrate. Right? All these things will get disintegrated. Nuclear envelope will get disintegrated. Nuclear envelope will also be disintegrated. Why? Because the chromosome has to come outside. Right? Yes? Yes. So now we are going to learn about metaphase. What is going to happen in metaphase? If you are looking at centrioles now, it means we are looking at animal cell. Right? Because in plant cell, you don't have centriole. Remember it? In plant cell, you don't have centrioles. Yes? So let us begin. What will happen now? At metaphase, centrioles will come at the pole. I had told you, these two regions are called as pole. What do you call them? You call them as pole. What do you call them? You call them as pole. Right? These two regions are poles. So centrioles have moved to the pole. Since it is centriole, since it is animal cell, you will have the formation of astral rays. You will have the formation of astral ray, which are nothing but accumulation of tubulin proteins. Accumulation of tubulin proteins, right? Then what will start to happen? Continuation will happen. Spindle fiber, continuation of these astral ray will lead to the formation of spindle fiber. It will lead to the formation of spindle fiber. These spindle fiber are going to catch hold on chromosomes. They are going to have the catch hold of the chromosome. They are going to catch the chromosome. Question is how? From where? So now the chromosome is like this. Right? The chromosomes are like this. You know, chromosomes at the centromere, these are going to bind. Where? At the centromere. What are centromeres? These are the centromeres.
At the centromere, where? At the centromere, they have hook-like structure called as kinetochore. Called as kinetochore. I have taught you. You can check in the previous videos. Kinetochore, and it binds to the kinetochore. The spindle fibers bind to the kinetochore of the chromosome, which are present at the centromere. Got it? Spindle fibers bind to the chromosome at the centromere through kinetochore. Through kinetochore. Imagine there are how many chromosomes in your body cells? 46 chromosomes. There are 46 chromosomes. You can imagine 46 chromosomes lying in the cytoplasm, and spindle fibers are holding them through the kinetochore at the centromere. Through the kinetochore at the centromere. So this is centromere. This one is what? Centromere. And the hook-like structure is what? This hook-like structure is what? Kinetochore. Kinetochore. Imagine thread is there, rope is there, and that rope is holding chromosomes. Imagine these chromosomes as people, human being. है ना? Human being are holding the ropes. These chromosomes are holding the ropes. What is happening? What is happening? Tug of war. What is happening? Tug of war. So what will happen? They are here and there. Chromosomes are floating here and there. Spindle fiber. This spindle fiber is trying to pull this side. This spindle fiber is trying to pull this side. Getting? From both sides, tug of war is happening. From both sides, tug of war is happening. And due to this, what will happen? It is 46 chromosome, 23 pairs, equal number of people. Equal number of people. So what will happen? What will happen? They will come at the middle position, equator. They will be like, okay, I'll come here, I'll come here, I'll come here. They will align at the equator. So what will happen? What will happen? All 46 chromosomes will align at the equator. I am drawing 3, but you should understand these are how many? All 46 chromosomes. And this is called as metaphase plate because it is the middle point happening in the metaphase, in the equator, middle point, middle axis. So this is called as metaphase plate. What is this called as? Metaphase plate. Or you can also say spindle equator. Spindle equator. Spindle equator. Spindle equator means spindle fibers were there, no? Centrioles, spindle fibers. They are connected to the centromere through kinetochore, through hook. And what is that hook? Kinetochore. Got it? So खूब झगड़ा हुआ इनके सामने, खूब झगड़ा हुआ. And finally उन्होंने बोला चल कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड इक्वेटर पे आ जाते हैं. तो ये स्पिंडल के लिए भी तो बीच वाला हुआ ना. फॉर द स्पिंडल ऑल्सो दिस इज द मिडिल पार्ट. सो स्पिंडल इक्वेटर बोल सकते हो और मेटाफेस प्लेट बोलोगे. पूरा प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरे एक एक्सिस में आ जाएंगे. All 46 chromosomes will come at the equator and this is called as metaphasic plate, my dear children. Got it? तो जब मेटाफेज स्टार्ट हुआ, when मेटाफेज started, तो क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच हुआ एंड वो खींचने लगे. खींच कर
एट द एंड ऑफ मेटाफेज क्या हुआ? फाइनली जब मेटाफेज मिल गया आपको, तो क्या हुआ? वो कहाँ आ गए? दे अलाइंड एट द इक्वेटर. दे गॉट aligned at the equator through the spindle fibers which got connected to the centromere through kinetochore. That is what happens in metaphase. I hope you have got it. कि वो कैसे यहाँ तक आए. इमेजिन करो टग ऑफ वॉर चल रहा है. टग ऑफ वॉर अभी भी चल रहा है, जीतना तो है ही किसी ना किसी को. टग ऑफ वॉर स्टिल हैपनिंग. ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है एंड ये इसको इधर पुल कर रहा है. फाइनली क्या होगा? पुल करते जाओ, एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा, है ना? शीशा हो या क्रोमोसोम हो, टूटना तो है ही. सो ये भी क्या होगा? टूट जाएगा. दिस विल ऑल्सो ब्रेक अपार्ट. ओके, एंड दैट इज योर एनाफेज. ये है आपका मेटाफेज. गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउ एनाफेज. झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है. द फाइट इज स्टिल ऑन. द टग ऑफ वॉर is still on. They are pulling the chromosome to the respective pole. है ना? ये चाहता है कि मेरे तरफ आ जाए, ये वाला पोल चाहता है मेरे तरफ आ जाए. और ऐसे झगड़े में क्या होगा? हमेशा बर्बादी, है ना? झगड़े में तो बर्बादी ही होती है ना. दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा. समझे? तो ये हो जाएगा सेपरेट. देखो अब कैसे सेपरेट होगा. एट एनाफेज what is happening is, at anaphase what is happening? यहाँ सेंट्रियोल्स थे. हाँ थे मैम. उसके आगे बताओ. स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं उसको. हाँ मैम खींच रहे हैं. क्या होगा बताओ? स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? सोचो. स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? सेंट्रोमियर से. तो सेंट्रोमियर से खींच रहा है वो. तो बोलो सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा. कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. सोच के बताना. ऊपर और कर देती हूँ इसको थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ. यहाँ सेंट्रोमियर है. कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा या कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा? जल्दी सोच के बताना. हम उसको खींच रहे हैं उसके सेंट्रोमियर से. तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ जाएगा या उसके आर्म जाएंगे पोल की तरफ? सोचो. हम क्या कर रहे हैं? हम सेंट्रोमियर को खींच रहे हैं. अगर मैं आपका सिर पकड़ के खींचूं तो आपका सिर ही आएगा ना मेरे पास कि पांव आएगा? इफ आई एम होल्डिंग योर सिर एंड उसको मैं खींच रही हूं तो सिर आएगा ना मेरे हाथ में कि पैर आएगा? सिर आएगा ना. सिमिलरली अगर स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमियर से इसको खींच रहा है तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा और उसके पैर ऐसे आ जाएंगे, है ना? ऐसे. तो ये चला गया पोल की तरफ, वहां से खींचा और पैर आगे आगे. क्रोमैटिड्स आगे आगे. तो ये गलत है ना? ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है. सारे क्रोमोसोम की अरेंजमेंट कैसी होगी? ऐसी होगी. ये समझ में आ गया होगा ना? क्यों? क्योंकि हम सेंट्रोमियर पकड़ के खींच रहे हैं. राइट? उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे आ जाएंगे. ठीक है? क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होगा पोल की तरफ और उसके जो आर्म है, आर्म वो होगा बाहर की तरफ, बिहाइंड, पीछे होगा. आगे कौन होगा पोल की तरफ? सेंट्रोमियर. पीछे कौन होगा? आर्म. इसी का सेंटेंस है एक एनसीईआरटी में. दैट सेंट्रोमियर इज फेसिंग टुवर्ड्स द. सेंट्रोमियर किसको फेस कर रहा है? पोल को. और आर्म उसके पीछे है. आर्म उसके पीछे है. आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड. आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड. ये एनसीईआरटी का टर्म है इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पढ़ो तो कंफ्यूज मत हो जाओ. ठीक है? आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, है ना? पोल से पीछे है वो, पोल से दूर भाग रहा है. सेंट्रोमियर पास है. ठीक है? तो व्हाट हैपेंड इन एनाफेज? इन एनाफेज what happened in anaphase? In anaphase the centromere splits. What happens? The centromere splits and due to that
द सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट्स. व्हाट हैपेंड? पहला पॉइंट बताओ क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट्स. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या हुआ? सेपरेशन. किसका? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेम क्रोमोसोम के हैं ना, तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, राइट? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. फिर बताओ, ये क्रोमैटिड्स कहाँ चले गए? द क्रोमैटिड्स मूव्ड टू देयर रेस्पेक्टिव पोल. ये आपके पोल्स हैं. क्रोमैटिड्स moved to respective poles and यही होता है आपका एनाफेज में. दिस इज व्हाट हैपेंस इन एनाफेज. कोई डाउट है यहां तक? पूछ लो. एनी डाउट इज देयर? दैट्स एनाफेज. ठीक है, तो मेटाफेज में क्या हुआ? दे केम एट द इक्वेटर. स्पिंडल फाइबर हर तरह से खींच के उसको इक्वेटर में ले आया. बहुत झगड़ा हुआ, टग ऑफ वॉर होता रहा, तो वो खींच के चले गए दोनों पोल में. सेंट्रोमियर टूट गया, स्प्लिट हो गया और सिस्टर क्रोमैटिड पोल की तरफ चले गए. ये हो गया एनाफेज. ठीक है, क्या आप सोच रहे हो? वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दो सेल अब बन जाएगा. देखो, हमने 2 क्रोमोसोम डिवाइड कर लिया है. यहाँ कितने क्रोमैटिड जाएंगे बताओ? 46 क्रोमैटिड जाएंगे. क्यों? यहाँ कितने क्रोमोसोम थे बच्चा पार्टी? 46 थे ना, तो ऊपर में 46 क्रोमैटिड गया और नीचे में 46 क्रोमैटिड आएगा, है ना? ऊपर में 46 क्रोमैटिड और नीचे में भी 46 क्रोमैटिड. कुछ समझ आ रहा है? ये फ्यूचर जनरेशन का क्रोमोसोम है ना, जो अभी डॉटर सेल्स बनेंगे, नए डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ये उनके क्रोमोसोम्स है. दीज आर देयर क्रोमोसोम्स. चलो, अब फाइनल स्टेज सीख जाते हैं, दैट इज टीलोफेज. व्हाट इज दैट? टीलोफेज. समझे? अब हमें बनाना है उसको 2 सेल. ये कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. क्या होगा यहाँ? रिमेंबर, प्रोफेज में क्या हुआ था? सब उल्टा करो. प्रोफेज में जो तुमने खोया उसको वापस लेना है. Whatever you lost in प्रोफेज, सबको वापस करो. पता है, इसलिए टीलोफेज को, दिस इज द रीजन वाई टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं. टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है? जो आपने खोया प्रोफेज में सब मिल जाएगा आपको. तो क्या क्या खोया था सर? याद है कुछ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन हुआ था. हम फिर से उसको क्रोमैटिन बनाएंगे. कंडेंसेशन का उल्टा डीकंडेंसेशन. तो ये जो क्रोमोसोम्स थे ना, अब उसको ऐसे ऐसे हो जाएंगे. वो क्या हो गए? पहला बताओ क्या हुआ? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. वो फिर से क्या बन रहे हैं? वो फिर से क्रोमैटिन बन रहे हैं, राइट? समझे? फिर क्या होगा बोलो? फिर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा ना. इसको भी तो लूज किया था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा. और क्या लॉस किया था सोचो? रिमेंबर न्यूक्लियोलस. फिर से न्यूक्लियोलस बनेगा. रीअपियरेंस ऑफ, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बन जाएगा. और क्या लूज किया था? रिमेंबर, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ आ जाएगा वापस. समझे? गोल्गी एपरेटस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। समझे? कुछ दिख रहा है कि 2 सेल बनने वाला है, कुछ दिख रहा है 2 सेल बनने वाला है, तो ये स्टार्ट कर देगा, ये रेडी हो जाएगा, है ना? यहां से वो गड्ढा करने लगेगा। इट इज रेडी नाउ टू डिवाइड, है ना? ये इधर से और इधर से क्या करने लगेगा? फरो बनाने लगेगा, सेल फरो, है ना? वो यहाँ पे ऐसे डीप डीप स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि उसको फाइनली क्या होना है? 2 सेल में डिवाइड होना है। सो दिस इज सेल फरो। वो भी कहाँ होगा? टीलोफेज में होगा। तो टीलोफेज में सेल फरो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको साइटोकाइनेसिस करना है। अब क्यों? क्योंकि वो पूरा क्रोमैटिन बन चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, न्यूक्लियोलस बन चुका है, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ रेडी हो चुका है, राइट? अब बस हमारा काम है फाइनल वाला, कि साइटोकाइनेसिस करो और 2 सेल पाओ, है ना? इसके बाद का जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? प्लांट का एंड एनिमल का साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। समझ आया? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या हुआ वो हमने सीखा आज की क्लास में, ठीक है? एनी डाउट इज देयर, यू कैन लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा साइटोकाइनेसिस सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से, प्लांट और एनिमल का। फिर उसके बाद हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इफ यू लाइक्ड इट, your concepts got clear, don't forget to subscribe and share, right? Thank you so much.